خدا جانے اس وقت میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ جس کسی کے پاس سے گزرتا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرے ہو جاتا اور مجھے راستہ دے دیتا اور میں اسے حیران و پریشان چھوڑ کر آگے نکل جاتا، مگر مجھے پیچھے لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں میرا پیچھا کر رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس میرا تعاقب کر رہی تھی۔ میں دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکوں گا۔ اچانک میرے سامنے ریلوے پھاٹک آ گیا۔ ریلوے پھاٹک بند تھا، ٹرین رکی ہوئی تھی۔ میں نے بائیں جانب ایک نگاہ ڈالی اور گاڑی کو چھک چھک کرتے آتے دیکھا۔ میں اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ میں ریل کے نیچے آ سکتا ہوں۔ میں نے دوڑ کر ریل لائن پار کی۔ عین اسی لمحے ریل سیٹی پر سیٹی بجاتے شور مچاتی میرے پیچھے سے گزر گئی۔ اس ریل نے میرے اور پولیس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ریل بھی مال گاڑی تھی۔ میں نے دوڑنا بند کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دوسرے پھاٹک کے پہلو میں آ گیا۔ یہاں لوہے کی چرخی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نکال دیا۔ میں اس میں سے نکل گیا۔ کچھ لوگوں نے مجھے آواز بھی دی کہ پاگل ہو گئے ہو۔ ریل پھاٹک کی دوسری طرف بھی کچھ گاڑیاں، تانگے اور رکشے کھڑے تھے۔ مال گاڑی سست رفتار کے ساتھ کھڑ کھڑ کرتی ابھی تک گزر رہی تھی۔ میں پیچھے دیکھے بغیر سامنے منہ کیے جا رہا تھا۔ کوئی 60-70 گز کے فاصلے پر سڑک کی ایک جانب درخت کے نیچے ایک لاری کھڑی تھی۔ لاری مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک لڑکا لاری کے پچھلے دروازے کے پاس کھڑا آوازیں دے رہا تھا، چلو ایک سواری لدھیانہ۔ مجھے معلوم تھا کہ لدھیانہ جلندھر کے بعد دوسرا بڑا شہر آتا ہے اور یہ دلی کی طرف جاتے ہوئے ہی آتا ہے۔ میں دوڑ کر بس میں سوار ہو گیا۔ میرے بیٹھتے ہی بس چل پڑی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ایک بار پھر خطرہ ٹل گیا تھا۔ بس جی ٹی روڈ پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ہندو سکھ سواریاں لدی ہوئی تھیں، عورتیں بھی بچوں کو لیے بیٹھی تھیں۔ سڑک کے کنارے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں آئے اور گزر گئے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ بس کچھ دیر رکی اور پھر آگے روانہ ہو گئی۔ علاقے میرے لیے بالکل نئے تھے۔ دن کی روشنی کم ہونے لگی تھی۔ سورج مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بس رستے میں جگہ جگہ رکنے لگی۔ کوئی سواری ہاتھ دیتی تو بس رک جاتی۔ مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ مجھے یہی خطرہ لگا ہوا تھا کہ جلندھر پولیس نے آگے ریلوے اسٹیشنوں اور چھوٹے شہروں اور قصبوں کے تھانوں کو ضروری ٹیلی فون پر خبر کر دی ہوگی کہ ایک پاکستانی جاسوس پولیس کی حراست سے فرار ہو چکا ہے۔ پولیس نے ان لوگوں کو میرا حلیہ بھی بتا دیا ہوگا۔ پکڑے جانے کا ڈر ضرور لگا ہوا تھا۔ کسی جگہ بس رکتی تو میں غور سے باہر کا جائزہ لے لیتا تھا۔ میں نے ایک سواری سے پوچھا کہ لدھیانہ کتنی دور رہ گیا ہے۔ وہ کوئی ہندو تھا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولا، مہاراج تم پہلی بار لدھیانہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں پہلے بھی ایک دو بار گیا ہوں، مگر ریل گاڑی پر گیا تھا۔ وہ ہندو تھوڑی دیر مجھے گھورنے کے بعد باہر دیکھنے لگا۔ شام کا دھندلکا کھیتوں اور آسمان کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ایک بڑی نہر آئی، بس اس کے پل پر سے گزر کر تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ سواریاں باہر دیکھنے لگیں۔ کسی نے ڈرائیور سے پنجابی میں پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ ڈرائیور نے کہا پتہ کراتے ہیں۔ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں۔ مجھے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر دیکھا۔ دور دور تک لاریوں اور بسوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے ٹکٹ والے سے کہا جاؤ پتہ کر کی گل لے۔ کلینر بھی سکھ تھا، وہ دوڑتا ہوا آگے گیا۔ سواریاں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ کسی نے کہا کہ شاید آگے کوئی پل ٹوٹ گیا ہے، کسی نے کہا کہ کوئی ٹکر ہو گئی ہے۔ اتنے میں ٹکٹ والا مجھے واپس آتا نظر آیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا سردار آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ ڈرائیور نے گالی دے کر پوچھا کہ کس چیز کی چیکنگ کر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی جاسوس بھاگ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری اندر سے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ بظاہر میں بڑے پرسکون انداز میں سیٹ پر بیٹھا تھا اور میں نے اپنے چہرے سے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میرے اندر کیا طوفان مچا ہوا ہے۔ اب مجھے وہاں سے بھاگنا تھا۔ ایک دم اٹھ کر بھاگنے سے لوگوں کو مجھ پر شبہ ہو سکتا تھا اور وہ مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتے تھے۔ میں بظاہر بڑے پرسکون کے ساتھ بیٹھا تھا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے یوں ہی ٹٹولا اور ساتھ والی سواری سے پوچھا بابا جی آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ سواری نے نفی میں سر ہلایا تو میں یہ کہہ کر نیچے اتر گیا، کہیں سے ماچس تلاش کرتا ہوں، سگریٹ پینے کو جی چاہتا ہے۔ میں بس سے اتر کر 2 قدم چل کر آگے گیا، پھر رک کر ایسے دیکھنے لگا جیسے مجھے کسی پان سگریٹ کے کھوکے کی تلاش ہو۔ اس کے بعد میں ٹہلتا اگلی لاری کے پاس چلا گیا، وہاں سے ٹہلتا ہوا دوسری اور پھر تیسری لاری کے پاس آ گیا۔ کچھ سواریاں سڑک پر اتر آئی تھیں اور پولیس والوں کو برا بلا کہہ رہی تھیں۔ یوں ہی جہاں چاہتے ہیں گاڑی کھڑی کروا کر چیکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
मैं सड़क पार दूसरी जानिब जो दरख्त थे उनके करीब आ गया। सड़क की दूसरी जानिब झाड़ियाँ थीं, उनके पीछे खेत थे जो शाम की तेज़ी से फैलते धुंधलके में गुम होते जा रहे थे। मैं टहलता टहलता झाड़ियों के पीछे आ गया। यहाँ एक जगह छुपकर मैंने लारियों की कतार की तरफ देखा। कोई मेरी तरफ मतवज्जे नहीं था। मैं दौड़कर खेतों में घुसा और जितनी तेज़ चल सकता था चलने लगा। दौड़ना मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता था क्योंकि खेतों की कटाई हो चुकी थी और वहाँ मुझे कुछ किसान भी नज़र आ रहे थे जो कटी हुई फसल को एक तरफ रख रहे थे। मैं उनसे दूर रहकर आगे निकल गया। मैं जीटी रोड की सिमत सीधा जाने की बजाय बाएं जानिब मगरिब की तरफ हो गया ताकि पुलिस से बच सकूं। हर लम्हे गहरा होता हुआ अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। जब मैं कुछ दूर निकल गया तो मैं दौड़ने लगा। मैं चेकिंग करती पुलिस से जितना दूर हो सकता था दूर होने लगा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि कमबख्त अभी से पुलिस ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। इससे बेहतर था कि मैं सीज़ फायर लाइन अबूर करके सीधा मकबूजा कश्मीर में पहुंच जाता और मुजाहिदों के साथ मिल जाता। मगर मेरे वालिद साहब को मालूम था कि कश्मीर में मेरा सामना भारत की तरबियत याफ्ता फ़ौज से है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत फ़ौजी तरबियत हासिल करनी चाहिए थी। चुनाचे उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि मैं कमाल शाह तरबियत याफ्ता कमांडो के पास जाकर कमांडो की तरबियत हासिल करूं और उसके बाद कश्मीर में दाखिल होकर इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ूं। मेरी भी अब यही ख्वाहिश थी। मुझे तो राइफ़ल भी चलानी नहीं आती थी और कश्मीर के महाज पर ब्रेन गनों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। मुझे हैंड ग्रेनेड का ही नहीं पता था। उसका पिन खींच लेने के बाद कितनी देर तक अपने हाथ में रख कर दुश्मन पर फेंकना होगा। मेरे लिए फ़ौजी कमांडो की तरबियत बड़ी ज़रूरी थी। मैं फ़ौजी कमांडो बनकर कश्मीर के महाज पर लड़ने के लिए दुश्मन के ठिकाने पर शबखून मारकर उसे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन भारतीय पुलिस मेरे रास्ते में शदीद रुकावट बन गई थी। बल्कि इस बात का वाज़ेह ख़तरा मौजूद था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जहाद में शामिल होकर काफिरों से जंग करने की आरज़ू खाक में मिल जाएगी। इन्हीं ख्यालात में डूबा मैं खेतों से बाहर निकलकर एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे तेज़ तेज़ चलता रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ और चलता चलता कहाँ और किस शहर में निकल आऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि मैं भारत की पंजाब पुलिस से काफ़ी दूर निकल चुका था। रात का अंधेरा खेतों के मैदानों में उतर आया था। मैंने नदी के किनारे एक जगह बैठकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया, थोड़ा सा आराम किया। फिर जब सांस ठीक हो गया तो नदी के साथ साथ चलने लगा। नदी आगे जाकर उसी तरफ घूम गई थी जिधर आगे मेरे अंदाजे के मुताबिक जीटी रोड थी। चुनाचे मैंने एक छोटी सी पुलिया पर से नदी अबूर की और दूसरी तरफ एक खुली जगह पर आकर चलने लगा। एक तरफ कुछ दरख्त थे। मैं आगे निकल गया। सोचने लगा कि आखिर कब तक चलता रहूँगा। मुझे मालूम करना चाहिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और आगे कौन सा इलाका आ जाता है, मगर वहाँ कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं ये मालूम कर सकता। चलते चलते खेत ख़त्म हो गए और बंजर ज़मीन शुरू हो गई। यहाँ बैलगाड़ियों और माल मवेशी के गुजरने के लिए रास्ता बना हुआ था। एक जगह कुछ फासले पर बहुत से दरख्तों के झुंड नज़र आ रहे थे। उनके दरमियान किसी ने आग रोशन कर रखी थी। पहले मैंने सोचा कि वहाँ जाकर किसी से पूछूं कि ये रास्ता किधर जाता है। फिर ये सोचकर रुक गया कि उस तरफ ख्वाम का शक पड़ सकता है कि आखिर मैं कौन हूँ जो इस तरह बगैर जाने बुझे इस इलाके में क्यों फिर रहा हूँ। मैं दरख्तों के झुंड से हटकर आगे गुजर गया। आगे एक गांव की रोशनियां सी नजर आ रही थी। मैं गांव की तरफ जाने की बजाय उसके पहलू से होकर आगे निकल गया। मुझे भूख लग रही थी। ख्याल आया कि गांव में जाता हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन मैंने इस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया क्योंकि ये पाकिस्तान का गाँव नहीं था। हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया का गाँव था। हिंदू सिखों का गाँव था और उनकी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। चंद कदम चला होगा कि अंधेरे में किसी चीज़ से ठोकर खाकर मैं गिर पड़ा। मुझे भैंस के डकारने की आवाज़ आई। ये कोई भैंस थी जो दरख्त के साथ बंधी हुई थी और काली होने की वजह से मुझे अंधेरे में नज़र नहीं आई थी। भैंस बैठी हुई थी मगर मुझसे ठोकर लगने के बाद उठ खड़ी हुई थी। मैं वहीं रुक गया और रात के अंधेरे में भैंस के जिस्म का जायज़ा लेने लगा। भैंस दो एक बार बोलने के बाद चुप हो गई थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और आगे बढ़कर प्यार किया। मैं उसके जिस्म को प्यार करता रहा। फिर बड़े आराम से उसके जिस्म पर हाथ फेरते फेरते उसके नीचे बैठ गया और उसके थनों को प्यार से सहलाने लगा। मुझे ख़तरा था कि कहीं भैंस मुझे दौलती न मार दे, क्योंकि जाहिर है वो किसी और के हाथों पर लगी थी। लेकिन ये बड़ी शरीफ भैंस थी। उसने मुझे कुछ न कहा और मैं उसका दूध पीने लगा। पहले तो उसका दूध ना निकला, फिर मेरे हलक में नीम गर्म दूध की धारें लगीं। भैंस खामोश खड़ी थी। मैंने खूब जी भर कर उसका दूध पिया।
और अपनी ज़ुबान में उसका शुक्रिया अदा करके चल पड़ा। मेरी भूख और प्यास मिट गई थी। मैं मैदान में से गुजर रहा था। रात का अंधेरा खूब गहरा हो गया था और सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा था कि मैं ज़मीन को देखकर चल सकता था। आगे एक छोटा सा गांव आया। गांव के करीब ही एक गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे के दरवाजे पर बल्ब रोशन था। अंदर से शब कीर्तन की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मुझे ना इस गांव का पता था कि इसका नाम क्या है और ना ये पता था कि आगे कौन सा गांव आएगा। मैं अंधेरे के समंदर में चला जा रहा था। दिल ने कहा कि यूं चलते जाना ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वापस जालिंदर पहुंच जाऊं। बेहतर यही है कि किसी जगह छुप कर रात बसर करो। बेहतर यही है कि किसी जगह छुप कर रात बसर करूं। सुबह जब सूरज की रोशनी निकले तो फिर पता करूं कि लुधियाना शहर किस तरफ है और किस तरफ चलूं। वैसे भी मैं चलते चलते थक गया था। वहाँ या तो अंधेरे में धुंधले धुंधले खेत नजर आ जाते या बंजर ज़मीन आ जाती थी। रात बसर करने के लिए कोई ऐसा ठिकाना दिखाई नहीं देता था जहाँ अगर मैं सुबह तक भी सोता रहूं तो मुझे कोई न देख सके। चलते चलते मैं ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ बेशुमार दरख्त आसपास उगे हुए थे। ये आमों का कोई बाग था। अभी दरख्तों पर आम नहीं लगे थे। ये आमों का मौसम भी नहीं था। दरख्तों के नीचे बड़ा गहरा अंधेरा था। किसी कुत्ते ने मेरी बू सूंघ ली थी। दरख्तों की तरफ से उसके भौंकने की आवाज़ आई। मैं तेज तेज कदम उठाता आमों के बाग से आगे निकल गया। वहाँ 2-4 दरख्त साथ साथ खड़े थे। मैंने सोचा इन दरख्तों के नीचे पड़कर रात गुजार दूंगा। आखिर मुझे ऐसी ही जगह पर रात बसर करनी पड़ेगी। कोई बिस्तर चारपाई तो यहाँ मुझे मिल नहीं सकती थी। मैं उन दरख्तों के पास गया तो मुझे वहाँ ऐसी बू आई जैसे किसी ने लकड़ियाँ जलाकर बुझा दी हों। मैंने कोई ख्याल ना किया और दरख्तों के नीचे जगह बनाकर बैठ गया। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था। रात को खुली जगहों पर ओस गिरने से ठंड हो जाती थी। उन दरख्तों के नीचे ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। ओस भी नहीं गिर रही थी। मैंने एक दरख्त से टेक लगा दी। सोचा इसी तरह लेटे लेटे जितनी रात बाकी रह गई है गुजार दूंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। फ़ज़ा में जली हुई लकड़ियों की बू उसी तरह आ रही थी। मैंने यही ख्याल किया कि गांव में किसी ने तंदूर जलाकर बुझा दिया होगा या लकड़ियों का अलाव रोशन किया होगा। मैं सिमट समटाकर दरख्तों से टेक लगाकर आंखें बंद किए नीम दराज था और सिवाय नींद के किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था। मुझ पर कुछ देर बाद हल्की हल्की गुनूदगी तारी होने लगी। मैं नींद की आगोश में ही था कि किसी चींटी ने मुझे काटा और मैं एक झटके के साथ उठ बैठा और पतलून के अंदर हाथ डालकर पिंडली पर बैठी हुई चींटी को मसल दिया। मैंने आंखें बंद की तो मुझे किसी के आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोल दी और कान उस आवाज़ पर लगा दिए। साथ ही रात के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। आवाज़ किसी औरत की थी। वो रुक रुक कर कुछ बोल रही थी। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि वो किसी से बात कर रही है, मगर वो जिससे बातें कर रही थी उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ रुक गई। 5-10 सेकंड के बाद औरत की आवाज़ आने लगी। मेरे सामने 10-12 कदमों के फासले पर सरकंडों की झाड़ियाँ थीं। आवाज़ उन सरकंडों के पीछे से आ रही थी। मैं उस तरफ टिकटकी बांधे देख रहा था। अचानक सरकंडों के पीछे हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्ता से उठकर झुक कर चलता हुआ सरकंडों की तरफ बढ़ा। मैं मालूम करना चाहता था कि ये औरत कौन है और ये रोशनी किस चीज़ की है। मैं सरकंडों के पास होकर बैठ गया और बड़ी एहतियात से 2-4 सरकंडों को हाथ से एक तरफ हटाकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ मुझे एक छोटा सा चबूतरा नजर आया जो ज़मीन से 1-2 फुट ऊंचा था। उस चबूतरे के एक जानिब मिट्टी का दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में मैंने एक औरत को देखा जो दोनों हाथ जोड़कर मुंह में कुछ पड़ते हुए चबूतरे का चक्कर लगा रही थी। मुझे लगा कि ये ज़रूर कोई चुड़ैल या भूत होगी, मगर औरत का जिस्म और आवाज़ चुड़ैलों जैसी नहीं थी। मैं ये सोचकर वहीं छुप कर बैठ गया कि मालूम करना चाहिए कि ये औरत यहाँ क्या करने आई है। औरत पर दिए की रोशनी पड़ रही थी। जब वो दिए की रोशनी के करीब से गुजरी तो मुझे उसकी शक्ल भी नजर आई। औरत जवान थी, सिर्फ लंबे बाल शानों पर खुले थे। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।